afternoon students, welcome to today's video lecture of probability. कल मैंने कुछ क्वेश्चंस खत्म किए थे एक्सरसाइज 13.4 के और आज बाकी क्वेश्चंस हम आगे करेंगे। उसके पहले एक बार वापस क्विक रिवीजन ले लेते हैं। रैंडम वेरिएबल, फिर उसके प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और मीन वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिविएशन का। रैंडम वेरिएबल तो क्या है? इट इज अ फंक्शन, इट इज अ real valued function, is a real valued function whose domain is sample space, whose domain is sample space of random experiment. तो मतलब random experiment के sample space, random experiment का sample space domain होता है random variable का। its range is या its codomain is R, its codomain हम प्रेफर करेंगे R और any subset of R और any subset of R। क्यों? क्योंकि वो रियल वैल्यूड फंक्शन है। रियल वैल्यूड फंक्शन का कोडोमेन क्या होता है? रियल नंबर्स या सबसेट ऑफ R। तीसरा पॉइंट क्या था? रैंडम वेरिएबल इज डिनोटेड बाय, रैंडम वेरिएबल is denoted by capital XYZ, is denoted by you can say letters X, Y, Z, etc. अब suppose x1, x2 till xn are values assumed by random variable x and its respective probabilities and its respective probabilities are suppose P1, P2 till Pn। तो probability distribution आपको याद होना चाहिए। probability distribution of random variable क्या था? x के वैल्यू x1, x2 till xn और p of x क्या था? P1, P2 till Pn। समझो? तो random variable, so the probability distribution of x is, the probability distribution of random variable x is क्या होना चाहिए? Can you recollect? ये टेबल क्या था? Random variable x and the corresponding probability of the random variable values assume करता है x1, x2 को इधर का लिख देता हूँ x3 till suppose xn और respective probability of getting x1 क्या है? p1, probability of getting x2 क्या है? छोटा p2, probability of getting x3 is p3 till pn। इधर क्या होना चाहिए? First point, सारी probabilities here 0, here p1 0 less than p1 less than equal to 1, 0 less than p2 less than equal to 1, 0 less than p3 less than equal to 1, dot 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 0 less than pn less than equal to। Therefore that is क्या था? सारी probabilities equal to 0 एक दो क्वेश्चंस में दिया हुआ है। So what you can write? less than 0 less than equal to 0 दे दो तो भी चलेगा। तो एक क्वेश्चन में equal to 0 दिया है। So go for it. You can take that probability 99.9% ये सारी probability 0 नहीं होंगी। ओके और एक क्वेश्चन में उन्होंने दिया है, एग्जांपल में नहीं, एक्सरसाइज में ही। So you can put it like this where I is 1, 2, 3 and second probability, second two conditions must be satisfied for probability distribution of random variable s। सारी probabilities 0 less than equal to x less than equal to 1 के बीच में होंगी। सारी probabilities close interval 0 to 1 में होनी चाहिए। 99.9% सारी probabilities greater than 0 equal to 0 नहीं होंगी। और एक्सरसाइज में क्वेश्चन में कहा इसके लिए I have greater equal to 0 और sum of all the probabilities क्या होनी चाहिए? 1। मतलब probability of getting x1 plus probability of getting x2 plus probability of getting x3 till probability of getting xn must be equal to 1। उसका मतलब p1 plus p2 plus p3 till pn equal to 1। ये दोनों में से कोई भी एक क्राइटेरिया सेटिस्फाई ना हो तो वो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन रैंडम वेरिएबल का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो सकता। ये था क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ द एक्सरसाइज जो हमने कल किया था। ओके अब आगे बढ़ते हैं। फिर
मीन और वेरिएंस को और मैंने क्यों रख दिया है मीन और वेरिएंस के लिए वो टेबल चाहिए, ठीक है, तो टेबल इधर बना देता हूँ। मीन वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिविएशन के लिए, क्योंकि वो आज मोस्टली मुझे लग रहा है काफी क्वेश्चंस में वो आने वाला है, x1 x2 टिल xn, और यहाँ पे आएगा p1 p2 टिल pn, ठीक है बच्चों। तो अब मीन का सिंबल क्या था, e ऑफ x म्यू, तो पहला पॉइंट मीन ऑफ x, पहला क्या था मीन, और एक्सपेक्टेड वैल्यू और एक्सपेक्टेशन ऑफ रैंडम वेरिएबल x मीन और एक्सपेक्टेड वैल्यू और एक्सपेक्टेशन ऑफ x, उसका सिंबल है, मीन का सिंबल e ऑफ x या म्यू है, और e ऑफ x कैसे मिलता है, e ऑफ x कैसे मिलता है, e of x कैसे मिलेगा, the value assumed by the random variable into उसका corresponding probability x1 into p of 1 plus x2 into p of 2 कहाँ तक जाएगा, xn into p of 1। तो उसको कुछ टीचर्स कैसे लिखते हैं, सिग्मा ऑफ xi into pi when I takes the values from 1 to 2। पेपर दिस वन इजीियर है, वेरिएंस का फॉर्मूला क्या था, वेरिएंस ऑफ x वो था b of x या सिग्मा स्क्वायर ऑफ x, वेरिएंस ऑफ x सेकंड का वेरिएंस ऑफ x, वेरिएंस ऑफ x, वेरिएंस का सिंबल था b of x या var of x या सिग्मा स्क्वायर ऑफ x। I will prefer b of x, और b of x का फॉर्मूला था e of x square minus e of x the whole square, और e of x square कैसे निकालेंगे, e of x square कैसे निकालेंगे, टेबल रखना पड़ेगा, क्या करने का, the value assumed by here e of x square कैसे मिलेगा, e of x square कैसे मिलेगा, value assumed by the random variable first is x1, तो उसका स्क्वायर करने का x1 square into its corresponding probability plus x2 square into its corresponding probability till xn square into p of x। Therefore, p of x square is actually sigma of xi square into pi where I takes the values from 1 to n, या फिर क्या xi square into pi, xi square into pi, sigma of xi square into pi where I takes the values from 1 to n। देखो this one only, और लास्ट में क्या था, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ रैंडम वेरिएबल x, उसका सिंबल ओके सपोज वो st पे रखता हूं, st स्टैंडर्ड डेविएशन इज सिग्मा x, और वो कैसे मिलेगा, स्टैंडर्ड डेविएशन होता है स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस, सो यू रिमेंबर दैट एज स्क्वायर रूट ऑफ v of x। that finishes the revision of the theory which is required for the random variable questions। Okay, so now let us start with the remaining portion of exercise 13.4। अब ये सारे पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए, आप देखो 3 या 4 पॉइंट्स ही है, बाकी सारा तो अपने लॉजिक पे है, लॉजिक अगर अच्छा है तो आराम से समझ आएंगे, लॉजिक अच्छा नहीं है तो समझ अच्छे तरीके से नहीं आएंगे क्वेश्चन में। ओके हाँ, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया था, इफ आई रिमेंबर वेल, यस फर्स्ट वन इज डन। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 इजी है, छोटा सा लग रहा है, और फिर क्वेश्चन नंबर 2 करता हूं। Let x represent the difference between the number of heads and the number of tails obtained when a coin is tossed 6 times. What are the possible values of it? Okay, a coin is tossed 6 times, ठीक है, उसके सैंपल स्पेस तो नहीं पूछा है, और फिर भी a coin is tossed 6 times, तो पहली बार में क्या आ सकता है ht, दूसरी बार में ht, तीसरी बार में ht, फिर next time भी ht, fourth time also, fifth time also you can end up getting head or tail, and sixth time you can end up getting head or tail। So cross if I give, okay,
2 2 जा 4 8 16 20 64 अब 64 आउटकम्स थोड़ी लिखेंगे राइट। अब उन्होंने क्या लिखा है, अब थोड़ी बुद्धि लगा यहाँ पे आउटकम तो खाली हेड या टेल ही है ना, तो उसका मतलब उसने क्या लिखा है, लेट x डिनोट x here x represents here x represents x represents the difference between the number of heads. Okay, so x denotes here x random variable को नहीं है, सीधा सिंपल लिखते हैं x denotes क्या लिखता है, x denotes difference between number of heads and number of tails. The number of heads and number of tails obtained when a dice is when a coin is tossed 6 times. On tossing a coin 6 times. ठीक है ना? तो number of heads obtained कितने होंगे? Number of heads, अगर मैं लिखूं number of heads और number of tails obtained, number of heads और number of tails अगर हम लिखें number of heads और इधर मैं लिखूं number of tails. ओके, तो अगर टोटल 6 आउटकम्स होंगे, हर एक आउटकम में HT तो टोटल ऑर्डर ट्रेड XY नहीं है यहाँ पे, या ऑर्डर ट्रेड XYZ जैसा नहीं है, यहाँ पे एक आएगा जिसमें 6 आउटकम्स आएंगे एक साथ, हर एक आउटकम में 6 होंगे टोटल 64 आउटकम्स होंगे, और उसमें एक आउटकम में पहली बार क्या है हेड हेड, दूसरी बार हेड हेड या ऐसे है। तो नंबर ऑफ हेड्स, तो उसमें अगर 0 हेड्स आते हैं, तो टेल्स कितने आएंगे, ऑब्वियसली 6। अगर नंबर ऑफ हेड्स 1 है तो नंबर ऑफ टेल्स कितने होंगे 5। अगर नंबर ऑफ हेड्स 2 है तो नंबर ऑफ टेल्स तब कितने होंगे 4। अगर नंबर ऑफ टेल्स 3 है यहाँ पे आउटकम मैं लिख देता हूं, आउटकम ऑफ S इस टाइप का होगा 1 2 3, उसमें 6 प्लेसेस होंगे 1 A B C D E F ऐसा आउटकम A B C D E F, और A B C D E F can be D E F can be H or D, can be head or tail। तो समझो जरा, तो अगर हेड्स 0 हेड्स है इधर, ये सारे 6 के 6 क्या आपके टेल उस लॉजिक से तब टेल्स आएंगे। अगर एक हेड है, कोई भी एक हेड है, कोई भी एक हेड है तो तब टेल्स कितना होगा 5। तो इससे मैं लिखा अंडरस्टूड 0 6, अगर 1 हेड है तो तब 5 टेल्स होंगे, अगर 2 हेड्स हैं तो तब कितने टेल्स होंगे 4, अगर 3 हेड्स हैं तो कितने टेल्स होंगे 3, अगर 4 हेड्स हैं तो कितने टेल्स होंगे 2, अगर 5 हेड्स हैं तो कितने टेल्स होंगे 1, और अगर 6 हेड्स हैं तो कितने टेल्स होंगे 0। और डिफरेंस of 1 and 2, suppose रिजल्ट नंबर 1 है और रिजल्ट नंबर 2 है, तो डिफरेंस ऑफ 1 and 2, डिफरेंस ऑफ 1 2, डिफरेंस बड़े में छोटा करना है, 6 - 0 6, 5 - 1 4, 4 - 2 2, 3 - 3 0, 4 - 2 2, 5 - 1 4, 6 - 0 6। x क्या था, डिनोट्स द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ हेड्स, तो वैल्यूज ऑफ x कौन सी आ सकती है 0 2 4 6। हो गया सर, 1 मार्क के लिए अच्छा क्वेश्चन है MCQ। So values of possible values of x, so therefore possible values of x, possible values of x 0 2 4 6 cover, that is question number 3। now question number 2, they are question number 2 क्या कहता है, question number 2 says an urn contains 5 red 2 black balls, total 7 balls हैं, total 7 balls, splitting कैसा है 5 red plus 2 black, फिर क्या लिखा है उन्होंने, फिर लिखा है 2 balls are randomly drawn, let x represent the number of black balls, what are the possible values of x, is x a random variable, 2 balls are selected here, 2 balls are selected here, 2 balls
are selected. Here two balls are selected. Two balls are selected. तो थोड़ी बुद्धि लगा, सैंपल स्पेस में कितने आउटकम्स आए? n of s. दो बॉल्स को सिलेक्ट करना है. Balls are of same size, equally likely. So therefore n of s कितना आएगा? Two balls are selected randomly. Two balls are selected randomly. So therefore n of s, सात में से कोई भी दो बॉल सिलेक्ट कर रहे हैं, 7c2. और उस कैलकुलेशन अगर आपको याद नहीं है तो 7 into 6 upon 2 factorial is 2 into 1. 2 1 2 3 are 21. n of s 21 आना चाहिए. So total 21 आउटकम्स है. आपको 21 आउटकम्स पूरा ढूंढेंगे. नहीं शांति से करना पड़ेगा. क्या लिखा है? An urn contains 5 red, 2 black balls. मैंने लिख दिया. 2 balls are selected. तो मैंने number of outcomes samples प्लेस किए. फिर क्या लिखा है? Let x represent number of black balls. What are the possible values of x? Is x a random? मतलब यहाँ पे हमको here x, let here x एक फंक्शन है. here x denotes, क्या लिखा है? here x denotes number of black balls, number of black balls in two selected balls, in two selected balls. अब मैंने दो balls select किए. Two balls are selected from 7 balls. तो दोनों balls कैसे हो सकते हैं? दोनों रेड, तो तब ब्लैक बॉल्स कितने होंगे? 0. अगर एक रेड और एक ब्लैक है तो उसमें एक ही ब्लैक बॉल होगा. और अगर मैं दोनों सिलेक्टेड बॉल दो ब्लैक रखूं तो कितने उस पे नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स होंगे? 2. So therefore possible values of x क्या है? So x denotes the number of black balls, number of black balls in two selected balls. What are the possible values of x? What are the possible values of x? तो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x कितने होंगे? अब वो डिटेल में नहीं जाना है. अगर दो सिलेक्टेड बॉल दोनों रेड है तो उससे ब्लैक बॉल्स कितने होंगे? 0. एक रेड और एक ब्लैक लिया तो उसमें एक ही ब्लैक बॉल है. अगर दो सिलेक्टेड बॉल दोनों ब्लैक बॉल है तो उसमें नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स कितने होंगे? 2. सो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x, सो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x क्या आएंगे? 0 1 2. 0 1 2. अब पूछा क्या है? What are the possible values of x? हो गया. Yes. Is x a random variable? Is x a random variable? अब random variable है कि नहीं वो चेक करना है. उसके लिए उसका probability distribution फॉर्म करना पड़ेगा और sum of all the probabilities 1 होना चाहिए और हर एक probability 0 और 1 के बीच में होना चाहिए. समझ लो. अच्छा क्वेश्चन. 7 balls थे उसमें 5 रेड थे प्लस 2 ब्लैक. अब फर्स्ट केस x is 0. x is 0. उसका मतलब क्या? 0 black balls selected. 0 black balls selected. मतलब 2 balls selected हैं. 2 balls selected हैं. वो दोनों कैसे हैं? So 2 selected balls. तो 2 balls मैंने select किए. वो क्या है? 0 black plus 2 red. Okay? Right. Okay. 7 balls हैं. कितने हैं? 5 red प्लस 2 ब्लैक. और हमने 2 बॉल्स सिलेक्ट किए. 2 सिलेक्टेड बॉल्स कैसे हैं? 2 सिलेक्टेड बॉल्स कैसे हैं? उसमें 0 ब्लैक बॉल्स है उसका मतलब 2 रेड प्लस ओके मैं ब्लैक को मेन कर देता हूं 2 ब्लैक प्लस 5 रेड. तो इधर कितने हैं? 0 ब्लैक बॉल सिलेक्टेड. सो 0 ब्लैक plus 2 red. Yes or no? So p of x equal to 0. P of x equal to 0. मतलब कितना आएगा? 0 black balls selected means p of 0 black and 2 red balls probability of selecting. So p of x equal to 0 क्या आएगा? जरा सोचो. 0 black balls 2 में select करूँगा 2c0 and 2 red 5 में से so 5c2 whole upon 7 में से select करना है 7c2. डालो चलो probability. So very good question for 2 or 3 marks. 3 mark question I believe. So 2c0 कितना होता है? 1 into 5c2 कितना होता है? 5 into 4 upon 2 into 1 और 7c2 होता है 7 into 6 upon 2 into 1. 2 2 1 1 gets cancelled. 2 2s are 2 3s are. So 5 divided by 7 so p of x equal to 0. So p of x equal to 0 is p of x equal to 0 is p of x equal to 0 कितना है?
5 into 2 upon 7 into 3, 10 by 20, 10 by 21. ओके, सेकंड केस क्या था? x का पॉसिबल वैल्यू क्या था? 1. x इक्वल टू 1 मतलब दो सिलेक्टेड बॉल में वन ब्लैक बॉल सिलेक्टेड, वन ब्लैक बॉल सिलेक्टेड, zero black ball selected in two selected balls, in two selected balls, in two selected balls, in two selected balls. अब ओके वही लॉजिक लगा, टोटल बॉल्स कितने हैं? 7. देख लो वही लॉजिक से 7 बॉल्स में 2 ब्लैक है और 5 रेड है और 2 बॉल्स हमने सिलेक्ट की, 1 रेड और 1 ब्लैक किया है तो ऑब्वियसली 1 रेड होगा. सो 2 बॉल्स सिलेक्ट, 2 सिलेक्टेड बॉल्स, 2 सिलेक्टेड बॉल्स हैं, उसमें 1 ब्लैक है और 1 रेड है. इजी. तो p of x equal to 1 मतलब क्या है? p of probability of x equal to 1 मतलब probability of selecting 1 black है, उसका मतलब probability of selecting मतलब 1 black and 1 red ball. Understood है? 1 black ball, 1 red ball. Okay. अब p of x equal to 1, 1 red कहाँ से सिलेक्ट करोगे? 1 black कहाँ से सिलेक्ट करोगे? ये permutation से combination का क्वेश्चन. 1 black ball can be selected from 2 black balls in 2C1 and मतलब in 1 red ball can be selected from 5 in 5C1 or total 2 balls are to be selected from 7C2. 2C1 is 2, 5C1 is 5, 7 into 6, 2 into 1. 2 ones are okay. 2 into 5, 2 into 5 upon 7 into 6 upon 2 into 1. 2 ones are 2 threes are. So that becomes p of x equal to 1 becomes 2 into 5 upon 7 into 3, which is again 10 by 21. So p of x equal to 1 is also 10 by 21. Third case क्या है? x is 2 था ना possible values, means 2 black balls, 2 black balls, 2 black balls selected in 2 selected balls 7 तो वही रहेंगे. 2 selected balls में अब क्या हो जाएंगे? 2 black. हमने 2 black किए तो red कितने करेंगे? 0. Now so this is easy. So p of x equal to 2. If you take out therefore p of x equal to 2 मतलब p of 2 black balls, 2 black and 1 0 red. 0 red. Now think कितना आएगा? 2 black balls कहाँ से करोगे? 2 black balls कहाँ से करोगे? 2 black balls from 2 black balls. 2C2. 0 red from 5 red. 5 red में 0 red मतलब 5C0 upon 7 में से 2 बॉल सिलेक्ट करना है 7C2. NCA 1 था 5C0 भी 1 आएगा और ये कितना आएगा 7 into 6 upon 2 into 1 फैक्टोरियल. 2 1s are 2 3s are. P of x equal to 2. P of x equal to 2 कितना है 1 upon 7 into 3 that turns out to be 1 upon 21. So P of x equal to 2. So P of x equal to 2 turns out to be 1 upon 21. तो सम खत्म नहीं हुआ है, सम खत्म नहीं हुआ है. हमको चेक करना है कि क्या वो रैंडम वेरिएबल है कि नहीं. तो ध्यान से देखो क्या लिखा है. So possible values of x, possible values of x क्या थे? Possible values of x क्या थे? वो लिखो 0 1 2 और दूसरा पॉइंट p of x equal to 0 कितना था 10 by 21. p of x equal to 1, p of x equal to 1 भी 10 by 20. ये रिपीट नहीं करोगे तो भी चलेगा. p of x equal to 2 ये भी था 1 upon 20. यहाँ तक तो हो चुका है. तो वो चीज अब आप वापस नहीं लिखोगे तो भी चलेगा. पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x क्या है 0.2. हाँ, तो probability distribution of x. Don't write probability distribution of random variable. Don't write state probability distribution of random variable. ठीक है. सारे probabilities कैसे हैं? सारे probabilities कैसे हैं? Here ये p of 0 ये p of 0 है. So the probability distribution of x
the probability distribution of x will be, okay, इधर x का वैल्यू लिखो कैपिटल X और P ऑफ x 0 1 2, इधर कितना था 10 बाय 21 10 बाय 21 1 बाय 21। अब क्या करूं, अब बता दो कि सारे प्रोबेबिलिटीज 0 और 1 के बीच में है। फर्स्ट वन here P of 0 is 10 by 21, it is greater than 0. Probability of 1 is 10 by 21 is greater than 0. और probability of 2 is 1 upon 21 which is greater than 0. और सारी probability 0 और 1 के बीच में है। Here, that is 0 less than equal to P of x less than equal to चलिए मतलब सारे probabilities that is 0 less than equal to P of x less than equal to 1 for x equal to 0 1, मतलब पहला प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गया। सेकंड प्रॉपर्टी क्या होना चाहिए, P of 0 plus P probability of getting 1 probability of getting 2, probability of getting 0 black balls, probability of getting 1 black ball, probability of getting 2 black balls। ऐसा समझ लेगा। ये कितना था 10 by 21 plus 10 by 21 plus 1 by 21, कॉमन डिनोमिनेटर है 21, ऐड करो 21 by 21 is equal to 1. Yes, sum of all the probabilities is 1, so it is random variable probability distribution. तो यहाँ पे जो x है वो random variable है। So here x is a random variable. So x is random variable. X is random variable. और यहाँ पर लिखो the probability distribution of x of random variable x लिखो या the probability distribution of random variable x is सीधा लिखते हैं सम करते हैं the probability distribution of random variable x is हो गया। हाँ सिंपल, टफ नहीं है। फोर्थ क्वेश्चन भी है डन। नाउ लेट अस स्टार्ट विद 11 ओके so let's 11 क्वेश्चन करते हैं। ओके let me do 11 question. Two dice are thrown simultaneously. X denotes the number of sixes obtained. Find the expectation of x. What is the expectation of x? Expectation of x is expected value of random variable x. उसका मतलब mean of x. Mean of x ढूंढना है। Mean of x ढूंढना है। निकालो। बहुत अच्छे तरीके से अच्छा क्वेश्चन है। Right? Not tough and not easy, but they are all lengthy question. They are all lengthy questions. Just 1 minute. First, let me do the 11. Okay. 11 में है two dice are thrown simultaneously. Question number 11. Two dice are rolled simultaneously, मतलब together. तो सैंपल केस क्या आएगा, पहले डाइस पे क्या आ सकता है 1 2 3 4 5 6 क्रॉस 1 2 3 4 5 6। सपोज दैट 2 और 3 मार्क्स क्वेश्चन, these are all 3 और 4 मार्क क्वेश्चंस। तो पहले कितना लिखना शुरू करने का। ओके सो n of s नंबर ऑफ आउटकम्स इन द सैंपल स्पेस कितना आएगा 6 into 6 36। सो n of s is 36 और probability of each outcome क्या है 1 by 36। probability of each outcome is 1 by 36। इतना लिखो, you don't end up getting 0, it's a 4 mark question। so probability of each outcome is 1 by 36। two dice are rolled simultaneously। x denotes random variable x है, और x का denote करता है x denotes the number of sixes obtained। x denotes the number of sixes obtained। okay, random variable is x is from so here x denotes क्या है number of sixes obtained, number of sixes given। so therefore I will write x
x is from S to R, where small x is x of u is equal to number of sixes in u, where u, small u is in sample space. अब जरा सोचो, मतलब वो आउटकम ऑफ सैंपल स्पेस है, जरा सोचने का। अब नंबर ऑफ सिक्सेस कितने हो सकते हैं? अगर आउटकम है 66, अगर आउटकम है 66 तो उसमें कितने 6 आएंगे? 2। अगर आउटकम है 16 या 26 या 36 तो उसमें कितने 6 हैं? एक ही बार आया। और अगर आउटकम है 2 तो उसमें कितने 6 आएंगे? 0। सो नंबर ऑफ सिक्सेस ऑब्टेन्ड इन यू कितना आएगा? 0 1 2। देयरफॉर x is equal to, so possible values of x, possible values of x में से लिख देता है, possible values of x क्या आएंगे? 0 1 2। so therefore small x is equal to x of u is equal to 0 1 2 for जहाँ पे u is a outcome in the sample space, yes or no? तो अब आपको पता है तो 36 आउटकम में से आपको वो आउटकम्स कितने हैं? यहाँ पे मैं लिखूंगा x, यहाँ पे मैं लिखूंगा प्रोबेबिलिटी या फेवरेबल आउटकम्स फॉर x और फिर सीधा उसका प्रोबेबिलिटी। आई होप दैट विल बेटर। यहाँ पे लिखूंगा स्मॉल x इज इक्वल टू x ऑफ u, यहाँ पे मैं लिखूंगा फेवरेबल आउटकम u फॉर स्मॉल x इज x ऑफ u एंड इधर से मैं लिखता हूँ p ऑफ x। ओके 0 टाइम्स 0 टाइम्स 66 वाले कौन से आउटकम्स हैं? या 2 टाइम्स 66 वाले में वैल्यू देता हूं। 2 बार 6 कब आएगा? पॉसिबल वैल्यू ऑफ x उनका लिख देते हैं। 2 6 मिल सकते हैं, 1 6 मिल सकते हैं, 0 6 मिल सकते हैं। तो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x आई विल राइट 2 1 0। तो 2 6 6 वाले कौन से आउटकम्स थे? 6,6। इसका प्रोबेबिलिटी कितना है? 1/36। सो देयरफॉर p ऑफ 0 मतलब गेटिंग 0, p ऑफ 2 मतलब probability of getting 2 sixes when a dice is when 2 dices are rolled simultaneously, तो p of 2 कितना आएगा? 1/6। तो ये एक ही आउटकम है। फिर 1, अब 1 मतलब एक ही बार 6 मिलेगा। एक ही बार 6 मिलेगा मतलब वो सारे आउटकम्स लिखो जिसमें एक ही बार 6 मिलता है, वो सारे आउटकम्स लिखो जिसमें एक ही बार 6 मिलता है। एक ही बार 6 मिलता है, कौन से आएंगे? 1 में नहीं आएगा। 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5। ओके, कितने आउटकम्स आएंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 आउटकम फेवरेबल है जिसमें 10 ऑर्डर पेयर्स आएंगे जिसमें एक ही बार 6 आता है। हर एक का प्रोबेबिलिटी कितना था? 1/36। तो उस लॉजिक से प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 6 when 2 dices are rolled, p of 1 हर एक का प्रोबेबिलिटी कितना है? 1/36। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/36 10/36। अब ये तो 25 आउटकम। ओके, तो ये 1 में लिखा इधर और ये सारे के सारे मैं इधर लिख देता हूँ। जस्ट वेट, थोड़े बड़े हैंडराइटिंग में, और ये 2 वाला है तो भी लिखना पड़ेगा, थोड़ा जल्दी हो जाएगा। आई एम वेरी सॉरी। पहले p of 2 2 बार 6 मतलब 6 6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 times 6 is 1/36। फिर 1 चाहिए, एक ही बार 1 आता है, एक ही बार 6 आता है। कौन कौन से आउटकम्स हैं? 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6। फिर 6 1 फिर है 6 2 फिर है 6 3 फिर है 6 4 और फिर है 6 5। कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6 1 टाइम इज 10/36 क्योंकि हर एक आउटकम का प्रोबेबिलिटी था 1/36। अब 25 आउटकम होंगे, अब 25 आउटकम्स होंगे। क्यों? ऑब्वियसली टोटल 30 आउटकम्स है। अब 0 बार इसी टेबल को मैं कंटिन्यू कर रहा हूं। क्या था यहाँ पे? स्मॉल x इक्वल टू x ऑफ u। फिर क्या था? फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम कौन सा था?
u in s for x is equal to x of u, और फिर हमने क्या लिखा था p of x, मतलब सैंपल स्पेस में वो आउटकम लिखने का जिसमें 0 बार 6 आता है, 0 बार 6 आता है, मतलब 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5, फिर आएगा 2 1 2 2 2 3 सो कौन से आउटकम्स हैं? 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5, फिर 2 वाले देखो 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5, फिर 3 वाले जिसमें भी 6 नहीं आता, एक बार में 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5, फिर 4 1 से 4 5, 5 आउटकम, तो 5 1 से 5 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5, और फिर 5 1 5 2 5 3 5 4 और 5 1, और मैंने क्या कहा था टोटल 25 आउटकम होने चाहिए, टोटल 36 से इधर 1 और इधर 10 11 26 में से 25, तो 25 आउटकम है जीरो के फेवर में, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग जीरो कितना आएगा? 25/36. So what will be the random variable का probability distribution? x का वैल्यू क्या है? 2 1 0, और नीचे क्या आएगा? 1/36, 10/36 और 25/36. Probability distribution of random variable x is, और फिर उसका मीन निकालना है या वेरिएंस जो भी पूछा है that you can manage. So therefore the probability distribution of random variable x of x is, और हाँ ये रैंडम वेरिएबल ही है, क्यों? क्योंकि सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज 1 होता है और सारे प्रोबेबिलिटीज का वैल्यू 0 और 1 के बीच है। कैपिटल X लिख दो और P of x लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। स्मॉल x लिखो, कैपिटल X लिखो, the choice is yours. You can write small p of x also. x का वैल्यू पहले क्या था? 2, फिर 1, फिर 0, इसका प्रोबेबिलिटी कितना था? 1/36, इधर था 10/36 और इधर था 25/36. यस, हमने क्या पूछा है? फाइंड द एक्सपेक्टेशन ऑफ x. सॉरी, वहां पे पूछा है फाइंड द एक्सपेक्टेशन ऑफ x. एक्सपेक्टेशन ऑफ x मतलब e of x. एक्सपेक्टेशन of x is equal to e of x. e of x कैसे निकालने का? x का करस्पॉन्डिंग वैल्यू इनटू उसका प्रोबेबिलिटी और वो प्रोडक्ट का सम ले जाना है हमेशा. सो 2 into 1/36 plus 1 into 10/36 plus 0 into 25/36. Yes, this is a 3-mark question or a 4-mark question. Easy 4-mark, but you can say a standard 3-mark question. अगर आपको सैंपल स्पेस और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आपने रैंडम वेरिएबल का नहीं बनाया, तो अगर ये टेबल आपको नहीं आया तो मीन या एक्सपेक्टेशन कैसे आएगा? सो 2/36 प्लस 10/36 प्लस 0, उसका मतलब 2 प्लस 10/36 1/3 आना चाहिए. सिंपल 2/36 प्लस 10/36 ऐड कर दो. 2 plus 10/36, so it's 12/36, which is 1/3. That's the answer, 1/3. मजा कर रहे हैं लोग? 11. Yes, so they want to play for this. Yes, it's 1/3. Answer is right. Without making a probability distribution, आप कैसे करोगे? जरा सोचने का. There are some textbooks and some teachers they give some other method. बच्चों को वो कभी-कभी बहुत छोटी लगती है, तो डायरेक्टली नहीं आएगा. This is the most easy method. और हाँ, थोड़े से स्टेप डाउन करना, थोड़ा फास्ट करना. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. 11th हो गया, अब 12th पे आओ. Let me do the 12th. Okay, क्या लिखा है?
two positive numbers are selected at random. Okay, question number 12. Two numbers are selected at random without replacement from the first 6 positive integers. Two numbers are selected. Be very proper. Two numbers are selected at random, or two numbers are selected at random without replacement. Without replacement from first 6 positive integers, मतलब from 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 and 6 from 1 2 3 4 5 6. Now let's start. यहाँ पे विदाउट रिप्लेसमेंट है, तो अगर आप दो नंबर्स को सिलेक्ट करो, दो नंबर्स आर सिलेक्टेड एट रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट, उसका मतलब इसमें 1 1 नहीं आ सकता, इसमें 2 2 नहीं आ सकता, 3 3 4 4 5 5, मतलब पहला नंबर अगर सिलेक्टेड 1 है तो दूसरे नंबर सिलेक्शन के लिए 2 3 4 5 6, मतलब सिमिलर नंबर नहीं आ सकते, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 नहीं आ सकता, पहला पॉइंट। दूसरा, अगर मैं 1 और 2 को सिलेक्ट करता हूं, अगर मैंने पहले 1 और 2 को सिलेक्ट किया या फिर 2 और 1 को सिलेक्ट किया, यहाँ पे कुछ हमको चाहिए, two numbers are selected, x denotes the larger of the two numbers, find here, so larger of the two numbers, तो जरा आप सोचो, मैं 1 और 2 को सिलेक्ट करूं या 2 और 1 को सिलेक्ट करूं, वो एक ही गिना जाएगा, yes or no? तो that's why I will say number of outcomes in the sample space, 6 में से कोई भी are selected without replacement from 6 numbers given by 1 2 3 4 5 6, उसका मतलब क्या करेंगे, what I will do, number of elements in the sample space कितना आएगा, 6 C2, मतलब 6 नंबर में से कोई भी 2 नंबर सिलेक्ट करो, that turns out to be 6 into 5 upon 2 into 1, 2 1s are 2 3s are, so 15, so n of s is 15. Okay, n of s is 15. I will not go with 30. 1 2 or 2 1 I will not keep because it's going to be same only. Larger or 2 numbers are. So 6 numbers कौन से? 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6. तो sample space में वो जो 15 आउटकम्स हैं वो कैसे लेंगे? पहले मैं लूँगा 1 2 या 2 1 एक ही है, फिर 1 3, फिर 1 4. Should I keep it? Right, बराबर 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6. ठीक, अब 1 से भूल जाओ, 2 से स्टार्ट करो. सपोज सिलेक्टेड नंबर्स 2 3 और 3 2 सेम ही है, ऐसा 2 3 2 4 और 2 5 2 6 2 3 2 4 2 5 2 6 और फिर आगे फिर 3 4 फिर 3 4 फिर 3 5 3 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 3 4 3 5 3 6 हुआ 3 6 हुआ, फिर 4 5 फिर 4 6 और 5 6. So total outcomes यहाँ पे लिखा 1, 2 ऐसे, मतलब ऑर्डर करके फॉर्म में क्यों लिखा है? ऑर्डर इज नॉट इम्पोर्टेंट. ओके, ऑर्डर इज नॉट इम्पोर्टेंट. हियर ऑर्डर ऑफ 2 नंबर्स सिलेक्टेड इज नॉट इम्पोर्टेंट. ओके, नोट करके इधर लिख देते हैं. नोट, order of 2 numbers selected is not important. First point. और दूसरा क्या था? 1 2. 1 2 means 1 and 2 selected. तो टीचर will understand कि 2 या 1 और 1 और 2 वो एक ही सिलेक्शन में दिए. Yes or no? Yes. अब रैंडम वेरिएबल x है, x कहां से होता है? x is from s to r, x is from s to r, x is from s to r. Random variable is x from s to r. Here x denotes क्या था? Here x denotes क्या था? x denotes x denotes the larger of the 2 numbers obtained. X denotes larger of 2 numbers selected. हाँ, तो दोनों में से कौन सा लार्जर नंबर
लार्जर कौन सा होता है जरा सोचो 1 और 2 में 1 और 2 में लार्जर नंबर 2 होता है 1 और 3 में 3 1 और 4 में 4 1 और 5 में 5 1 और 6 में 6 2 3 में 3 2 4 में 4 2 5 में 5 2 6 में 6 3 तो इसका वैल्यू क्या होता है लार्जर और 2 नंबर्स क्या होगा 1 2 3 4 5 में 1 का सिलेक्शन में 2 1 के साथ में 2 3 4 5 6 कर दो तो 1 2 में बड़ा नंबर 2 है 1 3 में 3 है 1 4 में 4 है सो लार्जर और 2 नंबर्स क्या होगा सो देयरफॉर x is equal to so x from x from here x is from s to r x is x of u is larger of two numbers in u जहां पे u is in sample space u is in the sample space को ऐसे रखूंगा तो आपको पता है possible values of x क्या हो सकती है possible values of x क्या हो सकती है therefore possible values of x wait sorry एक चीज को मैं लिखना ही भूल गया probability of each outcome sorry वो रैंडम वेरिएबल वाला पोर्शन प्लीज कैंसिल कर देना आई एम रियली सॉरी probability of each outcome कितने टोटल आउटपुट्स 15 1 by 15 sorry and random variable here random variable is x from s to r और x from s to r है तो small x is x of u so x denotes क्या है what is the random variable denoting the random variable is denoting the larger of the two numbers x of u is larger of two numbers in u जहां पे u is in sample space तो sample space में एक कोई भी आउटकम है उसमें larger of the two numbers तो larger of the two numbers जो मैंने आपको सिखाया तो x is equal to x of u possible values of x क्या हो सकती है 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 और वहां पे u कहां पे है सैंपल स्पेस में होना चाहिए u कहां पे होना चाहिए सैंपल स्पेस में होना चाहिए तो अब आपको पता है कि सैंपल स्पेस में से आपको वो आउटकम्स देखने पड़ेंगे जिसमें लार्जर नंबर 2 नंबर 2 है लार्जर नंबर 2 नंबर 3 4 5 6 वाला हमको वो टेबल फॉर्म करना है और फिर उसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बना के मीन या वेरिएंस जो भी दूसरा है वो आ जाएगा सो इधर नाउ लेट अस डू टेबल x के पॉसिबल वैल्यूज आपको याद है 2 3 4 5 6 लार्जर नंबर 2 नंबर ओके तो right now इधर मैं लिख देता हूं small x which is equal to x of u फिर मैं सीधा लिखता हूं फेवरेबल आउटकम कौन सा था u in sample space s for small x in s in sample space s for small x is x of u और फिर इधर सिंपल p of x small p of x probability of x about 2 सबसे पहला नंबर कौन सा है 2 लार्जर 2 नंबर्स इज 2 तो कौन से आउटकम्स आएंगे 1 2 खाली 1 2 आएगा 1 2 में ही लार्जर 2 नंबर्स 2 है 1 2 और कोई है नहीं लार्जर 2 नंबर्स इज 1 2 तो इसका प्रोबेबिलिटी कितना है हर एक का प्रोबेबिलिटी कितना है हर एक का प्रोबेबिलिटी इसका 1/15 था तो p of 2 कितना आएगा p of 2 is 1/15 लार्जर ऑफ 2 नंबर्स इज 3 तो लार्जर ऑफ 2 नंबर्स इज 3 मतलब कौन सा आएगा 1 3 फिर 2 3 यस और कोई नहीं है ना सो इसका प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 कितना आएगा तो आउटकम से 2/15 एक मिनट इसमें आएगा 2/15 so probability of larger of the number दोनों नंबर लार्जर नंबर 3 है उसका प्रोबेबिलिटी आएगा 2/15 फिर larger of the two numbers is 4 larger of the two numbers is 4 तो उसके फेवर क्या होगा तो कौन कौन से आएंगे 1 4 1 4 फिर 2 4 और फिर 1 2 सो
लार्जर ऑफ द टू नंबर्स इज 4, उसका प्रोबेबिलिटी आएगा 3/15. फिर लार्जर ऑफ द टू नंबर्स इज 5, लार्जर ऑफ द टू नंबर्स इज 5, उसके आउटपुट कितने हैं? वो कितने आएंगे? 1 5, फिर 2 5, फिर आएगा 3 5, फिर आएगा 4 5, 1 2 3 4. So probability the larger of the two numbers is 5 is 1 2 3 1 2 3 4 4 by 15. अब देखो 1 2 3 6 10 5 15 हो. Larger of two numbers is 6. तो टोटल चाहिए 5 आउटकम्स होने चाहिए. 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6. So probability the larger of the two numbers is 6. P of 6 मतलब probability the larger of the two selected numbers is 6. वो कितना आएगा? 5/15. Yes. So random variables का probability distribution आप form कर दो and then the answer will be okay. यहाँ पे मैंने select कर दी, वहाँ पर नोट लिखी मैंने, उसका मतलब क्या? 1 2 means 1 and 2 selected, तो टीचर समझ जाएगा बाकी के दो होंगे. ऑर्डर करने का मतलब. दूसरा ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट्स इज नॉट इंपॉर्टेंट, तो खाली रेफरेंस के लिए मैंने सैंपल्स में लिखा है. तो द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन of x is x का वैल्यू और p of x लिखो. चलो फिर मीन एक्सपेक्टेशन को निकाल दो and then the sum is 4. p of x कितना था? लार्जर टू नंबर्स 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 या 6. सबका प्रोबेबिलिटी इसका कितना था? 1/15, 2/15, 3/15, 4/15, 5/15. सम कितना है? 1 हो रहा है और हर एक प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच में है. सो माय आंसर इज करेक्ट. मैंने पूछा क्या है? फाइंड e of x. सो रिक्वायर्ड is e of x और expectation of x, expected value of x and mean of x किसे मिलेगा? x का वैल्यू into corresponding probability हर एक इंडिविजुअल. सो कितना आएगा? 2 into 1/15 plus 3 into 2/15 plus okay 2 into 1/15 plus 3 into 2/15 plus 4 into 3/15 plus 5 into 4/15 plus 6 into 5/15. Common denominator is 15 multiply करके न्यूमरेटर को ऐड कर दो. 2 plus 6 plus 12. Common denominator सबका कितना है? 15. कैंसिल मत करना. Easily you can get the answer and finish it off. 2 plus 6 plus 4 is 12 plus 5 over 20 plus 30 upon 15. What is the total? 6 plus 8 plus 6 20 20 plus 40 70 upon 15. 70 upon 15. 6 plus 2 8 20 plus 20 20 plus 40 70 upon 15 और फिर 5 से डिवाइड कर दो. 5 14 जा 5 3 जा. So 14/3 नीचे जाना. 14/3 two numbers selected. E of x is 14/3. That is the answer. 14/3. Right? अब मैंने इधर 1 2 और 2 1 वैसे वाले ऑर्डर पे नहीं रखे थे, समझ गए? अदरवाइज सारे आउटकम्स डबल हो जाएंगे तो इसके टोटल 30 आउटकम्स आते हैं. समझ क्लियर? इसलिए मैंने वो नोट करके लिख दिया क्या कि भाई ऑर्डर ऑफ two numbers selected is not important or 1 2 represents 1 and 2 selected. Understood? Larger the two numbers में हमको ऑर्डर होनी चाहिए, ठीक है ना? That's all. फिर next question पे आगे बढ़ते हैं. We have done 11, we have done 12 and now 13 पे आते हैं. 2 let x denote the sum of the numbers obtained. Let x denote the sum of the numbers obtained when 2 fair dice are rolled. 2 fair dice are rolled. Question number 13. Try to करो. I'll have some water. This one. Okay.
2 fair dice are rolled. 2 fair dices are rolled. उसका सैंपल स्पेस लिखो. पहले डाइस पे क्या आ सकता है 1 2 3 4 5 6. सेकंड डाइस पे भी क्या आ सकता है 1 2 3 4 5 6. तो therefore टोटल 36 आउटकम्स आएंगे. टोटल 36 आउटकम्स आएंगे. वो सारे के सारे 36 आउटकम्स लिखो. काम का है 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6. लिख लो जल्दी. 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6. फिर लिखो 3 1 3 2 3 3 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6. फिर है 4 1 से लेके 4 6 5 1 से लेके 5 6 और 6 1 से लेके 6 6. लिखो. इट इज वर्थ राइटिंग. तभी आप समझोगे. 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 और फिर है 5 1 से लेके 5 6 तक लिखना है. 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 आ जाएगा. ठीक है चलेगा. मैंने 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6. टोटल 36 आउटकम्स हो गए. वो सारे के सारे मैंने लिखे. क्यों लिखे? क्योंकि सम ऑफ द टू नंबर्स ऑब्टेन्ड ऐसा कुछ है. लेट एक्स डिनोट द सम ऑफ द नंबर्स ऑब्टेन्ड. यस सम ऑफ द नंबर्स ऑब्टेन्ड. तो उसके लिए ये सारे ऑर्डर्ड टेस्ट आपके पास चाहिए. n of s कितना आया? 6 into 6 is 36. So n of s is 36 and probability of each outcome कितना आएगा? Each outcome is 1 by 36. Okay. यहाँ पे जो random variable है x denotes the sum of the numbers obtained. Random variable x से हम शुरू करते हैं. So here therefore random variable is x. Random variable is x from s to r. And x from s to r is given. Small x is x of u. क्या है? Sum of the two numbers. Sum of two numbers in u. मतलब जो आउटकम है, हर एक आउटकम सैंपल स्पेस के हर एक आउटकम को मैं u बोलता हूँ. So sum of two numbers in u जहाँ पे where small u belongs to s. अब जरा सोचो sum of the two numbers क्या होगा? 1 1 में sum लिखना होगा. 2 1 2 में 3 1 3 में 4 1 4 में 5 1 6 में 6 1 7 6 में 7 3 5 2 6 में 8 3 6 में 9 4 6 में 10 5 6 में 11 और 6 6 में 12. So sum of the two numbers को रखना पड़ेगा मुझे. Sum of the two numbers obtained वो कितना होगा? Sum of the two numbers obtained वो कितना हो सकता है? When two dices are rolled. So therefore x which is x of u वो क्या हो सकता है? 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Yes ये सारे नंबर्स का हमारे पास आउटकम होना चाहिए. इसके लिए मैंने लिखा है. फिर मैं आपका दूंगा, आपको याद रखना. अब केवल कंटिन्यूटी में रहेगा. इसलिए ओके इसलिए इधर ऐसा वहां पे कंटिन्यू होगा. इस साइड में तो आएगा नहीं. तो स्मॉल x क्या था? x of u. यस फिर सीधा लिखो खाली फेवरेबल आउटकम for x, favorable outcomes and p of x. Okay. जब sum 2 होता है तो sum 2 के लिए कौन से आउटकम है फेवर में? 1 हर एक का प्रोबेबिलिटी का 1 by 36. तो p of नहीं इसका प्रोबेबिलिटी वैल्यू देता हूं मैं 1 by 36. फिर जब sum of the two numbers is 3 तो क्या आएगा? 1 2 और 2 1. दो आउटकम उसके तरफ में. तो p of 3 कितना आएगा? p of 2 probability of getting the sum of sum 2 कितना है? 1 by 36. probability of getting sum as 3 दो आउटकम उसके फेवर में. So 2 by 36. फिर sum of the two numbers obtained is 4. तो कितना आएंगे? 1 3 2 2 और 1. तो उसका मतलब probability of getting
sum of the two numbers is 4. हर एक का probability है 1/36 और 3/36 फिर 5. sum of the two numbers is 5. तो कौन कौन से आउटकम्स आएंगे? 1 4 1 4 फिर है 2 3 3 2 और 4 1. तो टोटल 4 आउटकम्स आए. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 नहीं है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम एज 5. सम ऑफ द टू नंबर्स इज 5. कितना है? 4 आउटकम्स उसके फेवर में है, इसके लिए प्रोबेबिलिटी है 4/36. फिर सम ऑफ द टू नंबर्स इज 6. सम ऑफ द टू नंबर्स इज 6. तो कौन से आउटकम्स आएंगे? जरा सोचो. 1 5 2 4 3 3 फिर है 4 2 फिर है 5 1 और फिर है yes right 5 आउटकम्स आएंगे. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द सम एज सम ऑफ द टू नंबर्स इज 6. 5 आउटकम्स उसके फेवर में, सो 5/36. अब आप देखो आगे कंटिन्यू करना है. तो अब आपको खुद देखना आना चाहिए ये सैंपल स्पेस, इसलिए मैंने लिखा था. और अगर एग्जाम में आप सैंपल स्पेस नहीं लिखते और लिखे बिना अगर आप कर सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. आपको लिखना पड़ेगा S contains ordered when xy when x, y is equal to 1 2 3 4 5 6. जो हमेशा हम लिखते हैं. Suppose you don't want to write this 36 outcomes, it is fine. अब नेक्स्ट कंटिन्यू ही करना है. ओके कंटिन्यू करना है यहाँ पे. तो यस इधर का स्मॉल x इज x of u, फिर था फेवरेबल आउटकम फॉर x और फिर p of x. जल्दी करो चलो. favorable outcomes for x for small x. और इधर था probability of favorable outcomes for x होना चाहिए, उतना जो बेटर है for small x. अब sum of the two numbers is 7. sum of the two numbers is 7. कौन कौन से ऑर्डर में जानी चाहिए? 1 6 2 5 3 4 4 3 फिर 4 3 फिर 5 2 और 6 1. 6 आउटकम उसके फेवर में. हर एक का प्रोबेबिलिटी 1/36. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 7 इज द सम वो आएगा 6/36. फिर 8 अब थोड़ा कम होगा, सो डोंट वरी. अब सम ऑफ द टू नंबर्स इज 8. 1 में तो नहीं आएगा. 2 6 3 5 4 4 5 3 और 6 2. So total 4 outcomes. The probability of getting sum of the two numbers is 8 is 5/5 outcomes उसके फेवर में. अब sum of the two numbers obtained is 9. फिर sum of the two numbers obtained is 10. फिर sum of the two numbers obtained is 11 and sum of the two numbers obtained is 12. नीचे से स्टार्ट करते हैं. थोड़ा नीचे से स्टार्ट करते हैं. sum of the two numbers obtained 12. एक ही आउटकम आएगा 6 6. So probability of getting sum of the two numbers 12 1/36. 11 कौन से आएंगे? 5 6 6 5. दो आउटकम्स के फेवर में. तो probability of getting 11 as a sum is 2/36. फिर 10 के लिए कितने आउटकम्स होंगे? 4 6 5 5 और 6 4. So probability of getting 10 as a sum कितना आएगा? 3/36. और 9 के लिए मुझे लगा आपने लिख लिए होंगे. कितने आने चाहिए? 3 6 4 5 फिर 5 4 और 6 3. तो 4 आउटकम उसके फेवर में है. तो प्रोबेबिलिटी दैट सम ऑफ द टू नंबर्स इज 9 इज 4/36. So therefore the probability distribution of this will be कितना बड़ा होगा? इसमें मुझे क्या पूछा है? Oh my God देवा, variance and standard deviation. तो पहले E of x निकालना पड़ेगा, फिर E of x निकालो, फिर पहले P of x, E of x square, फिर P of x का फॉर्मूला E of x square minus P of x the whole square. और उसके बाद आपको स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस लोगे, तब जाके आपको मिलेगा स्टैंडर्ड डिविएशन. सिंपल टीचर पूछ लेगा फाइंड द स्टैंडर्ड डिविएशन. So see, this is a 4-mark question, okay? Because it is lengthy. The probability distribution of x is थोड़ा
say you have to form, otherwise अगर wrong गया your answer will be wrong. So पहले x का value capital X, probability of getting x, sum of the two numbers is 2, sum of the two numbers is 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Yes. So that covers and very important. Probability of getting 2, कितना था 1 1, so 1 by 36. दो आउटपुट से 1 2 2 1 2 by 36. इसमें था 1 3 3 1 and 2 2, so 3 by 36. 5 वाला है 4 आउटपुट से कैन बी करेक्ट 4 आउटपुट से 1 4 4 1 2 3 3 4 3 2. So 4 by 36 के 5 आउटपुट थे, so 5 by 36 7 के probability 6 by 36, फिर 5 by 36, 4 by 36, 3 by 36, 2 by 36, 1 by 36. अब पहले E of x निकालो, E of x निकालो, do it. See, ये जो अभी मैंने टेबल बनाया ये प्रोबेबिलिटी के लिए, उसके बिना आप ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं फॉर्म कर सकते. तो आप देखो हर एक सम में एक अलग अलग आइडिया है और आपको पहले समझना है रैंडम एक्सपेरिमेंट को, उसका सैंपल स्पेस लिखना है या n of s करना है, उसके बाद आपको रैंडम वेरिएबल का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन करना है. पहले E of x निकालो. E of x क्या होता है 2 into 1 by 36 plus 3 into 2 by 36 plus 4 into 3 by 36 plus 5 into 4 by 36 plus is going to be lengthy but has to be done. 6 into 5 by 36 plus 7 into 6 by 36 plus कुछ बोलते हैं 8 into 12 by 36 गलत. यहाँ से 8 into 5 by 36 plus 9 into 4 by 36 plus 10 into 3 by 36 plus 11 into 2 by 36 plus 12 into 1 by 36. सारे प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच में सबका सम करो. 1 डिनोमिनेटर से 1 plus 2 3 plus 6 6 plus 4 10 plus 12 15 15 plus 6 21 21 plus 26 30 33 32 33 35 36 total 36 plus 36 प्रोबेबिलिटी सम 1 है. अब डायरेक्ट करो. टोटल नीचे कितना आना चाहिए, सबका कॉमन डिनोमिनेटर क्या है 36. सो कितना आएगा 2 1s are 2 plus 3 2s are 6 plus 4 3s are 12 plus 5 4s are 20 plus 5 4s are 20 plus 6 5s are 30 7 6s are 42 plus 8 5s are 40 plus 36 9 4s are 10 3s are 30 plus 22 plus 12 1s are 12. ये सबको ऐड करो. 2 plus 8 कैलकुलेटर कैलकुलेटर गोली भी कर सकता हूँ बट फिर अगर मिस्टेक हुई तो ध्यान से करना पड़ेगा. 6 plus 2 8 8 plus 12 20 20 plus 20 40 plus 30 70 70 plus 42 is 112 112 plus 40 is 152 152 plus 36 is 188 188 plus 30 218 218 plus 22 240 240 plus 12 52 52 आ रहा है 52 yes 52 by 2 52 it is 252 upon 36 and 252 upon 37 अगर करते हो तो 7 आता है 7. so E of x is 7. अगर मीन पूछा है एक्सपेक्टेशन बराबर और इतना सिंपल नहीं है. अब वेरिएंस पूछा है वेरिएंस पूछा है वेरिएंस मतलब आई एम यूजिंग द सिंबल v of x. नाउ v of x क्या होता है E of x square minus E of x the whole square. Here v of x is variance. Variance is v of ये फॉर्मूला है तो अब क्या करना पड़ेगा E of x square निकालो. E of x अभी निकालना है, अभी E of x square निकालना है. Okay, so don't be in a very happy mood.
ये हमारा आंसर आ गया। e of x नहीं पूछा है, e of x स्क्वायर, e of x स्क्वायर क्या था, x के वैल्यू को स्क्वायर करके मल्टीप्लाई करना है, so 2 स्क्वायर इनटू 1/36 प्लस 3 स्क्वायर इनटू 2/36 प्लस 4 स्क्वायर इनटू 3/36 प्लस 5 स्क्वायर इनटू 4/36 प्लस 6 स्क्वायर इनटू 5/36 प्लस 7 स्क्वायर इनटू 6/36 प्लस 8 स्क्वायर इनटू 5/36, यस राइट है, अब आ जाएगा प्लस 9 स्क्वायर इनटू 4/36 प्लस 10 स्क्वायर इनटू 3/36 प्लस 11 स्क्वायर इनटू 2/36 plus 12 square into 1/36. See, these are not a joke. Okay, common denominator क्या है? Common denominator क्या है सबका? 36. तो अब देखो मैं डायरेक्ट ही कर रहा हूँ. अब मैं डायरेक्ट ही कर रहा हूँ. कैसे? 2 square 4, 4 1 जा 4 plus 3 square 9, 9 2 जा 18 plus 4 square 16, 16 3 जा 48. नंबर्स बड़े हैं तो मुझे छोटा लिखना पड़ेगा. कितना आएगा? 2 square 4, 4 1 जा 4 plus 3 square 9, 9 2 जा 18 plus 4 square 16, 16 3 जा 48 plus 5 square 25, 25 4 जा 100 plus 6 square 36, 36 180 200 plus 7 square 49 into 6, 49 into 6 कितना आता है? 294. 294. 8 square 64 into 5. 64 into 5 होता है 320. 4 नंबर कितने हैं? 9 square 81 into 4. 81 into 4. 324 plus 324 plus 10 square 100 plus 300 plus 11 square 121. 121 into 2 होता है 242. 242 plus 144 into 144. So 144. Please cooperate. ये समझ गए आप ये सारे नंबर्स. अब इन सबको ऐड करके अपॉन 36 चाहिए e of x square. Yes. ये सारे नंबर्स को ऐड करके हमको चेक करना है. e of x square will be how much? e of x square will become 2 square 4 into 1 4 plus 3 square 9 2 18 plus 4 square 60 60 3 48 plus 5 square 25 24 100. तो मैं डायरेक्ट कर देता हूँ 4 plus 18 फिर 2 square 4 1 4 3 square 9 2 18 राइट है. 4 square 60 60 3 45 5 square 25 24 100 96 square 35 180 7 square 49 49 into 6 49 into 6. अगर ये गलत कैलकुलेशन आंसर गलत आएगा 6 स्क्वायर 100 6 स्क्वायर 30 35 180 राइट है. 49 into 6 294 यस राइट है. फिर 8 स्क्वायर 64 64 into 5 320 आना चाहिए. यस 320 है. 9 स्क्वायर 81 into 4 324 आना चाहिए. 81 into 4 324 है. फिर 10 स्क्वायर 100 300 राइट है. 11 स्क्वायर 121 into 2 121 into 242 yes और 144 yes right. अभी सब नंबर स्क्वायर करते हैं. 4 plus 18 सारे डिफरेंट डिवाइड करो plus 18 plus 48 plus 100 plus 180 plus 294 plus 320 plus 324 plus 300 plus 242 plus 144 is 1974. 1974 check 1974. Question that I know we are doing question number 13. Question number 13. So e of x कितना आया था? e of x 7. So e of x square. e of x square आया 1974 upon 36. 1974 upon 36. 6 से कैंसिल होता है. 6 3s are 18 1 7. So yes 6 6s are 36. 6 3s are 18. 1 7 17. So 6 2s are 12 5 329. Yes it's 329 upon 6. That is e of x square.
So therefore E of x square turns out to be 329/6. अब V of x और E of x कितना था? 7 था. E of x 7 था. So variance V of x is E of x square minus E of x the whole square. कितना आएगा? E of x square कितना है? 329/6 minus 7 the square. Solve करो and you get the answer. See what you get. And you see what you get. E of x, V of x variance आएगा, उसके बाद उसका स्क्वायर रूट करना है. That is the standard deviation. It's a 4-mark question. So 329/6 minus 49. So 329 minus 49 6 are 49 6 are 294 था. 294/6 कितना आएगा? 29 plus 6 35/6 आता है. V of x variance V of x is 35/6. Is the right answer? 35/6 variance 35/6. Yes, that's the right answer. और ये variance आ गया 35/6 और standard deviation उसका स्क्वायर रूट होता है. तो variance is V of x is equal to sigma square of x या VAR of x. और कितना आया? 35/6. और आप डिवाइड भी कर सकते हो. 35 divided by 6 turns out to be 5.8333. That's the answer. Okay, suppose ऐसे होने जाना है. And standard deviation is sigma x is square root of variance. So square root of 35/6 5.8333 का स्क्वायर रूट निकाल दो. 2 point something will be the answer. And इसमें क्या पूछा है? Standard deviation. Standard deviation of x का सिंबल होता है सिग्मा x. स्क्वायर रूट ऑफ मैं सीधा लिखता हूँ वेरिएंस. I will prefer square root of vx, square root of v of x, which is square root of 35/6 or square root of 35/6 मतलब 5.833 का square root. Go for it. The square root of 5.833. So 5.833, which is how much roughly? It turns out to be 2.415 up to 4 decimal places. 2.415 or 2.41 approximately. So this is so okay. 4 decimal places तक approx. Prefer 35/6 instead of 35/6. Done. Question number 13 done. Okay. Question number 13 done. Okay. Now question number 14 and 15. Question number 14 or 15. Okay. Now what I will do is that जो easy question है, let me solve those two easy questions. Okay. Simple. Question number 15 करते हैं. Easy लग रहा है मुझे. Okay. In a meeting, 70% of members favor. Okay. पहले वो डेटा लिख देते हैं. In a meeting, 70% of members favor of members 70% of members favor a proposal and 30% oppose favor. Okay, favor and 30% oppose a certain proposal. एक proposal को 70% लोग फेवर करेंगे और 30% अपोज करते हैं certain proposal. अब एक रैंडम वेरिएबल को हमने दिया है कि a member is selected. A member is selected. Okay, ठीक है ना. A member is selected. Now a member is selected. A member is selected. और देखा गया है क्या वो अपोज करता है या वो अपोज करता है या फेवर करता है प्रपोजल को. फेवर करेगा तो रैंडम वेरिएबल का वैल्यू x वन रखते हैं और अगर वो अपोज करता है तो रैंडम वाला वेरिएबल का वैल्यू 0 रखते हैं. जैसे करंट जाएगा तो ट्रू और फॉल्स होता है. तो ट्रू और फॉल्स में क्या करते हैं? अगर कोई आंसर ट्रू है तो क्या कहते हैं करंट गोइंग, तो
तो कभी कभी लॉजिक में हम 1 रखते हैं और करंट ऑफ तो हम लॉजिक में ऑफ रखते हैं। वैसे एक्सेप्टिंग द प्रपोजल को 1 रखा जाएगा रैंडम वेरिएबल का वैल्यू, और अपोजिंग यू कैन से प्रपोजल तो उसमें रैंडम वेरिएबल का वैल्यू 0 रखा जाएगा। ये लॉजिक है, इन्होंने क्या दिया है, हां इधर उन्होंने लिखा है नंबर इज सिलेक्टेड एट एनी टाइम x इज इक्वल टू 0 इफ he is opposed। तो ये कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 15, जस्ट वन मिनट। क्वेश्चन नंबर 15 करेक्ट करो ना आंसर, जस्ट वन मिनट। ओके, for x equal to 0, okay, a member is selected, okay, so for x equal to 0 कब होता है, if he is opposed, मतलब वो member को member is selected और देखा गया कि member को oppose किया जाता है, नहीं, वो member को oppose किया जाता है या वो member को reject किया जाता है। so for x is equal to 0, member is opposed, ऐसा को लिखा है, member is opposed, yes, so p of x equal to 0 क्या आएगा, p of x equal to 0 क्या आएगा, अपोजिशन में कितना है 30% अपोजर प्रपोजल, so 30/100, so 3/10, so p of x equal to 0 कितना आया 3/10। for random variable x is 1, उसका मतलब member is favored, लिखा होगा, member is in favor, if he is opposed, member is in opposition, member oppose कर रहा है किसको, प्रपोजल को, member opposes the proposal, ऐसा समझो बेटर, member opposes प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं करता तो कितने लोग अपोजिशन में, 30/100, member favors the proposal, इजी क्वेश्चन है, फिनिश करो, बहुत इजी आ जाएगा। p of x equal to 1, कितने लोग फेवर में है, 70%, so 70/100, so 70/100 मतलब 7/10, so p of x equal to 1 कितना है 7/10। सीधा देखो रैंडम वेरिएबल का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, so पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x कितना है 0 और 1, और सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज कैसा है 3/10 और 7/10, तो यहाँ पे वो रैंडम वेरिएबल है, so p of 0 और p of 1, so possible values of x कितनी है, so possible values of x 0 और 1 है, सीधा लिखा है possible values of x, p of x और v of x होगा possible, so the probability distribution of x is possible values of x कौन से थे, दो ही थे ना 0 और 1, तो जल्दी खत्म करो, 0 और 1, सॉरी 0 और 1, therefore possible values of x 0 or 1, therefore p of x equal to 0 are 3/10 और p of x equal to 1 वो है 7/10। Some of the probabilities 1 है तो random variable of the probability distribution of random variable x सेलेक्ट करें, समझ आएगा, the probability distribution of random variable x is, आप खुद करो ये क्वेश्चन आराम से आप खत्म कर सकते हो, इतना इजी है ये क्वेश्चन, इट इज नॉट एट ऑल टफ। e of x और v of x, x का वैल्यू p of x 0 वैल्यू है और 1 वैल्यू है, ये कितना है 3/10 और ये है 7/10, सो e of x निकालो और क्या निकालना है e of x और v of x, so therefore e of x मतलब मीन या एक्सपेक्टेड वैल्यू 0 into 3/10 plus 1 into 7/10 कितना आएगा 0 plus 7/10, so e of x आया 7/10, that is easy। now you know variance of x मतलब var of x, var of x is v of x, ऐसे लिखो variance of x is var of x, var of x is variance of x, and v of x का फॉर्मूला क्या था e of x square minus e of x
the whole square. Go for it. E of x square निकालो, कैसे करने का? 0 का स्क्वायर इनटू उसका करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी x की जो भी वैल्यू है. So therefore E of x square कितना है? 0 का स्क्वायर into 3/10 plus 1 square into 7/10. 0 का स्क्वायर कितना होता है? 0 into 3. So 0 plus 7/10. So E of x square. Therefore E of x square is 7/10. E of x square is 7/10. Yes, E of x is 7/10 and E of x square is also 7/10. Now go for it. Variance of x standard deviation नहीं पूछा है, तो उसमें हमको नहीं जाना है. So E of x square 0 नहीं आएगा. E of x का स्क्वायर होता है. Therefore E of x variance of x E of x square minus E of x the whole square मतलब 7/10 minus 7/10 the whole square कितना है? 7/10 minus 7/10 minus 7 square कितना होगा? 49 upon 100. What is LCM? So 70 minus, so 10 100. So 10 tens are, so 70 minus 49. So that comes out to be 21 upon 100. 0.2. 21 upon 100. Yes, 21 upon 100 is that answer. Yes, 21 upon 100 is 0.2. 21 upon 100 इधर लिखते हैं, ताकि नीचे न जाए, नीचे 0.21 is the variance. So variance of x, area of x is 21 upon 100 or 0.21. Easily done. Yes. Over. So we have finished question number. We have finished question number 15. We have finished. Okay. Now, mean of the numbers of the number is I think 16 is a very relatively एक छोटा सा क्वेश्चन है जो हम मैनेज कर सकते हैं. Okay. What I will do is that I will keep this. So मैं solve कर रहा हूँ last question for today. Okay. Easy question है. Question number 16. आप आराम से finish करो 3 या 4 मिनट में. Okay. The mean of the numbers obtained on throwing a dice. having एक dice है. Question number 16. Okay. Question number 16 में क्या है? A dice has returned. A dice has returned 1 on its 3 faces. मतलब 3 faces पे 1 लिखा है, फिर 2 लिखा है, has written 1 on its 3 faces, return okay 2 on its 2 faces, 2 is written on 2 faces and 5 is written and 5 on 1 face. And this dice is rolled and given dice is rolled. Given dice is rolled. ये given है. Okay. अब वो क्या पूछ रहा है? The mean of the numbers obtained on throwing a dice. उसका पूछ रहा है. The mean of the numbers obtained on the dice पूछ रहा है. तो क्या निकालोगे? Number obtained क्या हो सकता है? Number obtained क्या हो सकता है? Number obtained क्या हो सकता है? Number obtained on the dice. इसमें डाइस is rolled. डाइस पे क्या है? 3 फेस पे 1 लिखा है, 2 फेस पे 2 लिखा है और 1 फेस पे 5 लिखा है. So numbers obtained on rolling dice क्या है? 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 5 आ सकता है. Probability of getting okay sample space में कितना आउटकम्स है? Here total 6 spaces है. So number of outcomes in the sample space is 6. So probability of getting 1. Probability of getting 1 on dice कितना आएगा? Okay. Numbers obtained on the dice. Random variable. Okay, मैं लिख देता हूँ. The random variable x. Okay, random variable x. First numbers obtained on the dice. Okay.
random variable. X denotes random variable is x from x to r, and x denotes number obtained on us. Number obtained on dice. So x का वैल्यू क्या हो सकता है? So possible value of x 1 to 5. So therefore possible values of x. Possible values of x. बहुत इजी क्वेश्चन है. I give you time to finish. Possible values of x क्या हो सकता है? 1 आ सकता है, 2 आ सकता है और 5 आ सकता है. ये नॉर्मल डाइस नहीं है. So probability p of x equal to 1. P of x equal to 1 कितना आएगा? P of x equal to 1. Therefore P of x equal to 1 is probability of getting 1 of the dice. कितने फेसेस पे 1 लिखा है? 3. टोटल कितने फेसेस? 6. तो बाय P of x equal to 1 the probability of getting. एग्जाम में ऐसा नहीं लिखोगे तो भी चलेगा. सीधा 3/6 भी चलेगा. probability of getting 2 वाले कितने फेसेस हैं? 2 है और टोटल फेसेस 6 है. सो 1/3. और लास्ट में P of getting 1 लिखा है, 2 लिखा है और 5 लिखा है. 5. So probability of getting 5. एक ही फेस है जिसमें लिखा है 1/6. It's better to keep 3/6, 2/6, 1/6. बेटर रहेगा. तो सीधा सारे प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच में है. यस. और सबका सम कितना है? सबका सम 3/6, 2/6, 1/6, 1 है. तो कुछ टेंशन की जरूरत नहीं है. सीधा the probability distribution of x equal the probability distribution of x is सीधा लिखो. रैंडम वेरिएबल है तो ज्यादा अब you don't have to show the conditions. The sum of all the probabilities is 1 and understood. Capital X P of x. Number obtained is 1. The number obtained is 2. Number obtained is 5. कितना probability था? 3/6, 2/6, 1/6. उन्होंने क्या पूछा? The mean of उन्होंने पूछा है the mean of the numbers obtained. So required क्या है? Mean of numbers obtained on rolling a dice. इसका मतलब E of x. Understood? ये आप सोचो MCQ में this types of question they come as 1 mark in good CT and goods. Okay, so that's why you need to be very speedy. आपका स्पीड बहुत होना चाहिए कैलकुलेशंस में, तभी आप स्कोर कर पाओगे. 1 into 3/6 plus 2 into 2/6 plus 5 into 1/6. कॉमन डिनोमिनेटर 6 है. 3 plus 2 to the 4 plus 5 upon 6. 4 plus 3 7. 4 plus 3 7. 7 plus 5 12. 12/6 is 2. So mean of the number of entities. क्या है? 2 है क्या? 2 yes 1. Anyways, you can write 3/6 को आप 1/2, 1/3 और 1/6 को तो भी चलेगा. So that's it for today. आगे नहीं करना है. I hope you would have understood. Each of the two numbers obtained. जो E of x है वो कितना आया? 2. ठीक है. अभी जो क्वेश्चंस मैंने अभी तक नहीं किए पर्सनली अभी मैं नीचे से ऊपर जा रहा हूँ, मतलब मैं लेवल बढ़ा रहा हूँ क्वेश्चंस का. ओके 4 + 3 7. तो मैं आपको क्या कह रहा हूँ, लेवल ऑफ सम्स में बढ़ा रहा हूँ. तो अब जो मैं कल के वीडियो लेक्चर में सम सॉल्व करूँगा सबसे अच्छे हैं और वो बहुत टफ है और उसमें अच्छे लॉजिक की जरूरत है. अच्छे तरीके से इसका रिवीजन करो और प्रैक्टिस करो. दैट्स इट. थैंक यू.